Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello my dear students, in my previous video I had discussed on properties of inverse trigonometric functions. Today in this video I will work out some problems of exercise 2.2 based on those properties of inverse trigonometric function. The question is prove the following. The first one is 3 sin inverse x is equal to sin inverse 3x minus 4x cube, where x belongs to the closed interval minus half to half. Okay, 3 sin inverse x is equal to sin inverse 3x minus 4x क्यूब, इसी को प्रूफ करना है. तो इसको प्रूफ करने से पहले हम लोगों को सोचना है कि इसमें कौन सा ट्रिगोनोमेट्री कौन सा प्रॉपर्टीज हम लोग यूज़ करेंगे और कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी इसमें हम लोग यूज़ कर सकता है. तो इसलिए हम लोग कुछ टेक्निक यूज़ करना पड़ेगा. ओके, तो यू सी 3 sin inverse x, if we consider sin inverse x is equal to theta, then it will be 3 theta. sin inverse को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करने से it will be sin 3 theta. तो sin 3 theta, sin 3 theta, लेफ्ट हैंड साइड it will be sin 3 theta. अभी sin 3 theta का फॉर्मूला क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है. sin 3 theta is equal to 3 sin theta minus 4 sin cube theta. sin 3 theta is equal to 3 sin theta minus 4 sin cube theta. ओके, तो ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी यूज करके हम लोग इसको प्रूव कर सकता है. प्रूफ लेट sin inverse x is equal to theta, therefore x is equal to sin of theta. We know that sin 3 theta is equal to 3 sin theta minus 4 sin cube theta. So sin 3 theta, 3 sin theta means sin theta क्या मिला है, x minus 4 sin cube theta, sin theta means x, so sin cube theta means x cube, hence thrice theta is equal to sin inverse 3x minus 4 x cube, or 3 theta means sin inverse x is equal to sin inverse 3x minus 4x cube. Proved. In question number 3, we are to prove that tan inverse 2 upon 11 plus tan inverse 7 upon 24 is equal to tan inverse 1 upon 2. इसी को प्रूव करना है. तो tan inverse 2 upon 11 plus tan inverse 7 upon 24, इसका वैल्यू इन टर्म्स ऑफ tan inverse में निकालना है. ओके, तो इसके लिए हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, दैट इज tan inverse x प्लस tan inverse y. वो कौन सा प्रॉपर्टी है, tan inverse x प्लस tan inverse y इज इक्वल टू tan inverse x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस xy. क्योंकि हेयर x इंटू y, देख लीजिए x इंटू y दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 7 बाई 24. इसको मल्टीप्लाई करने से 4 6 3 4 24 इंटू 11 4 2 6 2 7 to the 14 which is less than 1. तो इसीलिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस xy, वेयर xy इज लेस देन 1. तो ये जो प्रॉपर्टी है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, ये प्रॉपर्टी यूज करके इसको हम लोग प्रूव कर सकता है. tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिया है. तो इट इज इक्वल टू tan इनवर्स
x plus y, here x is 2 upon 11 plus y means 7 upon 24 divided by 1 minus 2 upon 11 into 7 upon 24. That is tan inverse 11 and 24. What is the LCM of 11 and 24? इसका LCM है, चलो 11 into 24 यही हो गया LCM, बाद में देखेंगे. 24 into 2 that is 48 plus 11 into 7 that is 77. Here also 11 into 24. So 11 into 24 1, it will be 4 6 to 6 4 minus 7 to the 14. Just simplify it, is equal to tan inverse 11 into 24, here 48 plus 75, 7 8 15, 7 for 11 12, ऊपर चला जाएगा, it is 11 into 24 and 264 minus 14, it will be 250. This and this is cancelled. It will be tan inverse 125 divided by 250. So tan inverse it will be 1 upon 2. Proved. Next question, to prove that 2 tan inverse half plus tan inverse 1 upon 7 is equal to tan inverse 31 by 17. ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 का सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें tan इनवर्स था, इसमें 2 tan इनवर्स है. ओके, तो फर्स्ट हम लोग को क्या करना है, 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे. तो इसलिए हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर. दैट इज 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर. इसी को यूज करके पहले 2 tan इनवर्स को हम लोग tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे. ओके, तो लेट अस नाउ सी. सो प्रूफ, लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ले लेंगे 2 tan इनवर्स 1 upon 2 प्लस tan inverse 1 upon 7. So 2 tan inverse x, that is tan inverse 2x, that is 2 into 1 upon 2, 2x divided by 1 minus x square, x means half, plus ये जो है it will be remain same, tan inverse 1 upon 7. So tan inverse 2 into half, that is 1, 1 minus 1 upon 4 plus tan inverse 1 upon 7. So tan inverse 1 by 1 minus 1 upon 4, it will be 3 upon 4 plus tan inverse 1 upon 7, that is tan inverse, ये जो फर्स्ट टर्म है रेसिप्रोकल है, सो इट विल बी 4 by 3 प्लस tan inverse 1 by 7. अब इसमें कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y. उसका प्रॉपर्टी जो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy. दैट इज tan इनवर्स x प्लस y, x मीन्स 4 upon 3 प्लस y मीन्स 1 upon 7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x into y. That is tan inverse, LCM is 3 7s are 21, 7 4s are 28 plus 3, here also 3 7 21,
21 minus 4 ones are 4. So it will be tan inverse 28 plus 3, that is 31 divided by 21. Here 21 minus 4, that is 17 divided by 21. Tan inverse 31 upon 21 into 21 upon 17. 21 cancel. So tan inverse 31 upon 17 proved. So ये सब प्रूव करने के लिए हम लोगों को प्रॉपर्टीज के ऊपर कंसेप्ट रहना जरूरी है. यू मस्ट हैव द गुड कंसेप्ट ऑन properties of inverse trigonometric functions. Question is, write the following functions in the simplest form. The question number 5 is tan inverse root over 1 plus x square minus 1 divided by x where x not equal to 0. ये जो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है. इसलिए हम लोग को क्या करना है, वी आर टू चूज ए सुइटेबल सब्सटीट्यूशन. हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू सब्सटीट्यूशन हम लोग पुट करेंगे और वो सब्सटीट्यूशन क्या होना चाहिए, सुइटेबल होना चाहिए. सुइटेबल इन द सेंस हम लोग ऐसा करके सब्सटीट्यूट पुट करेंगे ताकि इसमें जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो सब्सटीट्यूट पुट करने के बाद ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी हम लोग अप्लाई कर सके. ओके, इसमें सब्सटीट्यूशन मीन्स x का वैल्यू साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, जो भी हम लोग को सुइटेबल लगे उसी को हम लोग क्या करेंगे इसमें अप्लाई करेंगे. ओके, जैसे इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का साथ प्लस स्क्वायर ऑफ ए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो. तो जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मीन्स सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इट इज व्हाट, कॉसेक स्क्वायर थीटा. सो will apply or will put x is equal to either tan theta और cot theta, क्योंकि हम लोग इसमें tan theta और cot theta पुट करने से एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो रहा है. ओके, सो विल पुट लेट x इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, tan theta मान लीजिए हम लोग पुट करेंगे, x इज इक्वल टू tan theta. सो थीटा इज इक्वल टू tan inverse x. Therefore tan inverse root over 1 plus x square minus 1 divided by x is equal to tan inverse root over 1 plus x is equal to what, हम लोग क्या मान लिया, tan theta, that is tan square theta minus 1 divided by tan theta is equal to tan inverse root over 1 plus tan square theta. 1 plus tan square theta होता है sec square theta. Therefore root over 1 plus tan square theta means sec theta minus 1 divided by tan theta. Again tan inverse sec theta means it is the reciprocal of cos theta, so we can write 1 by cos theta minus 1. Tan theta means sin theta upon cos theta. इसमें q हम लोग ये सब आइडेंटिटी यूज कर रहा है क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है. That is tan inverse here cos theta LCM, so 1 minus cos theta divided by sin theta by cos theta. So this cos theta and cos theta will be cancelled. Therefore tan inverse 1 minus cos theta divided by sin theta. 1 minus cos theta divided by sin theta, इसको और क्या कर सकता है,
वो सोच लीजिए। और क्या लिखने से इसको हम लोग और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड साइन थीटा मीन्स 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। एक कहाँ से आया है देखिए, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 2 साइन स्क्वायर थीटा। जब 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है तब इसमें 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसमें 2 थीटा का प्लेस में है ओनली थीटा, सो हियर विल बी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। लेकिन इसमें है साइन थीटा 2 थीटा का प्लेस में थीटा है, सो हियर 2 साइन, इसमें थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो एक एक कैंसिल, सो इट विल बी टेन इनवर्स दिस 2 कैंसिल और हियर विल बी साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, hence tan inverse is sin theta by 2 divided by cos theta by 2, that is tan theta by 2। अभी tan inverse and tan inverse tan x means x और tan inverse tan theta means theta, so it will be theta by 2 और half of theta, फिर theta is equal to tan inverse x। This is the answer. Question number 7 is tan inverse root over 1 minus cos x divided by 1 plus cos x, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ओके, तो 1 माइनस कॉस एक्स, हम लोग एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जानते हैं। आइडेंटिटी क्या है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन इसमें है 1 माइनस कॉस एक्स, इसमें 2x नहीं है, ओनली x। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 इंटू थीटा बाई 2, 2 कैंसिल, अल्टीमेटली कॉस थीटा। अभी ये जो 1 माइनस कॉस 2 इंटू थीटा बाई 2, इसको 1 माइनस कॉस 2 थीटा इसके साथ कंपेयर करने से 2 साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 2 साइन स्क्वायर, इसमें थीटा है थीटा बाई 2, दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देयरफॉर 1 माइनस कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सिमिलरली 1 प्लस कॉस थीटा को लिख सकता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, सो टेन इनवर्स इसमें रूट ओवर 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड हियर 2 cos स्क्वायर x बाई 2, दिस 2 कैंसिल, फिर साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर x बाई 2 स्क्वायर कैंसिल स्क्वायर रूट का साथ, देयरफॉर इट विल बी टेन इनवर्स 10 x बाई 2, फिर टेन इनवर्स 10 x इज इक्वल टू व्हाट x, देयरफॉर टेन इनवर्स 10 x बाई 2 मीन्स x बाई 2। दिस इज द आंसर। The next question is question number 9, tan inverse x by root over a square minus x square। तो इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। Here also we have to choose the suitable substitution, क्योंकि इसमें tan inverse x by root over a square minus x square है, तो इसमें एक बार हम लोग ट्राई करके देखते हैं। a square minus x square, the algebraic expression is a square minus x square। इसमें x का वैल्यू ऐसा करके पुट करेंगे ताकि ये जो एक्सप्रेशन है इसमें हम लोग एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो देख लीजिए, इफ वी पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, इफ वी पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, देन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए नहीं, इट इज नॉट एन algebraic आइडेंटिटी। अगर इन प्लेस ऑफ साइन थीटा इफ वी पुट x इज इक्वल टू a साइन थीटा, तो देख लीजिए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन होने से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अभी हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। देयरफॉर वी विल पुट x इज इक्वल टू a साइन थीटा।
even we can put x is equal to a cos theta also, क्योंकि if we put x is equal to a cos theta, here will be a square minus x square is equal to a square minus a square cos square theta. a square कॉमन लेने से 1 minus cos square theta हो जाएगा, then it will be a square sin square theta. So x is equal to हम लोग a sin theta पुट कर सकता है, even x is equal to a cos theta भी पुट कर सकते हैं. Okay, so we'll put x is equal to a sin theta. So let x is equal to a sin theta, then sin theta is equal to x upon a, hence theta is equal to sin inverse x upon a. Okay, theta is equal to sin inverse x upon a. Therefore tan inverse x by root over a square minus x square is equal to tan inverse x is equal to a sin theta, and here is a square minus x square means a square sin square theta, that is tan inverse a sin theta. Here a square is common, 1 minus sin square theta. Therefore tan inverse a sin theta, a square को रूट ओवर का आउटसाइड लाने से, बाहर में लाने से it will be a, and 1 minus sin square theta, root over है, so it will be cos theta. This a cancel, sin theta by cos theta means tan theta, hence tan inverse tan theta, so it will be theta, and the value of theta is sin inverse x by a. This is the answer.